How are you all? I hope you are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 7, that is Internet, basic terminology and uses. In today's world, we cannot do anything without Internet. Internet has become the basic thing of our life, basic need of our life. So let's begin. In this chapter, we are going to study about internet. कि इंटरनेट क्या होता है, उसकी टर्मिनल कि कैसे कैसे यूज करते हैं इंटरनेट को, टर्म्स क्या क्या रिलेटेड होता है हमारे इंटरनेट से, देन वेब ब्राउजर एंड ब्राउजर टूल बार क्या होता है, इंटरनेट सिक्योरिटी एंड पासवर्ड एंड सिक्योरिंग योर अकाउंट, कैसे सिक्योर करते हैं अपने अकाउंट को. इंटरनेट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क बिकॉज इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर. वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क है जो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर होता है एंड सर्वर्स दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जो किससे कनेक्टेड होता है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं by using routers and switches around the world. It is an increasingly important part of everyday life. मतलब बढ़ती जा रही है इसकी ज़रूरत हमारी यहाँ रोज़गाना लाइफ में for people around the world. The internet is a global system of interconnected computer network. Global system होता है interconnected computer network का that use the TCP/IP. TCP means transmission control protocol and IP is internet protocol. So like devices worldwide. It is a means of connecting a computer. It means to connect a computer to any other computer anywhere in the world via dedicated routers and servers. When two computers are connected over the internet, जब दो कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं वो इंटरनेट पे, they can send and receive all kinds of information. सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं हर तरह की इंफॉर्मेशन को, जैसे आपके टेक्स्ट हो गए, ग्राफिक्स हो गए, वॉइसेस, वीडियोस एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स. A router is a networking device. एक राउटर की एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो फॉरवर्ड करता है डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स. डेटा पैक्स आपको पता करे कि ये डेटा पैक्स से बड़ा जीबीज होती है, स्पीड्स होती है, इनके डिफरेंट राउटर परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑन द इंटरनेट. ये क्या परफॉर्म करता है, ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है इंटरनेट पे. एंड अ डेटा पैकेट कम्स फ्रॉम एनी लाइन, द राउटर रीड्स द एड्रेस. जब कोई भी डेटा पैकेट आता है तो मतलब डेटा पैक आता है, राउटर क्या करता है, रीड करता है एड्रेस को, इन्फॉर्मेशन को इन द पैकेट to determine its ultimate destination. Now let's talk about uses of internet. क्या क्या uses होते हैं इंटरनेट के. With internet it is possible to lot of things. हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, हम सर्च कर सकते हैं, मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, मेल सेंड कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, तो अपने रिलेटिव से, अपने लव्ड वन से बात कर सकते हैं कॉल्स के थ्रू. So with internet it is possible to do lot of things that were not possible earlier. Some of our uses of internet are research and homework. The internet is a fantastic place to research information. एक fantastic place है research करने के information को for a project or any piece of hard work. You can gather information about anything. आप कोई भी किसी चीज से related को information को gather कर सकते हो from internet. Internet has got a huge database of information. Internet को एक huge database मिला है information का और almost every subject, and one can easily find out lots of information. और कोई एक मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इंटरनेट पर, जिसके आपको नॉलेज भी नहीं है वो भी फाइंड कर सकते हो ऑन एनी टॉपिक यूजिंग इंटरनेट. सो सोशलाइज एंड कम्युनिकेशन, आप सोशलाइज भी कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो इंटरनेट की वजह से. Social networks have really been big since last decade. Facebook, Twitter, and are the new online social networking sites. इन online social networking sites आजकल Instagram भी चल रहा है, बहुत सारी other feature, WhatsApp other features चल रहे हैं आपके apps. Now it is possible to be in that touch with all of our friends and relatives who live in other part of the world. अब हम easily touch में रह सकते हैं WhatsApp के थ्रू, Facebook Messengers के थ्रू, अपने जो हमारे रिलेटिव्स दूसरे पूरे वर्ल्ड में किसी पार्ट में रह रहे हैं, मतलब जहाँ पे हम इजीली कांटेक्ट नहीं कर पाते, हम इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू इजीली बात कर सकते हैं उनसे. द इंटरनेट ओपन्स अप मेनी डिफरेंट पॉसिबल वेज टू कम्युनिकेट. बहुत सारे पॉसिबल वेज आ गए कम्युनिकेट करने के लिए अपने रिलेटिव से, ईमेल्स के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, चैट रूम्स, फोरम्स, वॉल पी, इंटरनेट, टेलीफोन. Now let's talk about e-banking. We can transfer money from one place to another easily. E-banking has become a boom for everyone. You can open account online. आप online account open कर सकते हो, view आप कर सकते हो अपनी account की activities को easily execute कर सकते हो online transaction from the comfort of your home. Now online shopping and ticket booking. ऑनलाइन शॉपिंग हैज मेड थिंग्स रियली इजी. जो ऑनलाइन शॉपिंग है इसने चीज़ों को बहुत इजी कर दिया है. यू कैन बाय एनीथिंग ऑनलाइन विद गारंटी
वारंटी पीरियड, आप गारंटी और वारंटी पीरियड में ऑनलाइन से चीज़ें शॉपिंग कर सकते हो जो आपको इजीली शॉप्स पे नहीं मिल रही है. इफ यू डोंट हैव टू गो टू मार्केट, यू कैन बाय ऑनलाइन ब्लिंकिट्स के थ्रू, ज़ेप्टोस के थ्रू, एंड मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स, अमेज़न, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट. So on popular e-stores like eBay, Amazon, Myntra, etc., you can find almost anything that you need to buy. आप हर चीज़ find कर सकते हो जो आपको खरीदनी है. These e-stores are quite reliable, and you can find quality products. आपको quality products मिल सकते हैं यहाँ पे, brands मिल गए अच्छे. In case you want a movie ticket, अगर आपको movie ticket चाहिए, flight ticket चाहिए, आप बुक कर सकते हो पे just इंटरनेट को यूज करके कहीं से भी बुक कर सकते हो. The process is very easy, convenient, and super fast. Leisure and entertainment. You can play games, watch movies, listen music, read online books, ebooks, search for relevant information, and do many other works on the internet. The first tweet was sent on March 21, 2006 by Jack Dorsey. First tweet किसने कहा था? 2006 में कहा था, 21 मार्च को जैक डॉर्सी ने. ना टर्म्स क्या क्या रिलेटेड है हमारे इंटरनेट से. लाइक फर्स्ट क्या है हमारा HTTP मींस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये सेट ऑफ रूल्स है बाय व्हिच वेब पेजेस आर ट्रांसफर्ड अक्रॉस द इंटरनेट. सो HTTP इज अ प्रोटोकॉल टू एक्सचेंज और ट्रांसफर हाइपर. ये प्रोटोकॉल है टाइम ट्रांसफर करने के लिए हाइपर टेक्स्ट को. नाउ www.worldwideweb. और द वेब इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेबसाइट. कलेक्शन होती है या फिर डिफरेंट वेबसाइट्स की you can access through the internet. It is an information system on the internet. ये information system है आपके इंटरनेट पे जो अलाउ करते हैं डॉक्यूमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए to the document by hypertext link, enabling the user to search for information by moving from one document to another. It is an information space है where documents and other web sources are identified. जैसे documents और आपके web sources identify होते हैं by uniform resource locators like URLs जो होते हैं अपने uniform resource locators होते हैं, interlinked by hypertext link and can be accessed via internet. IP address, each computer on the internet can be identified. हर कंप्यूटर जो होता है हमारे इंटरनेट पे उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं IP एड्रेस से कि आपसे आपको कोई मैसेज भेजा जाता है कहाँ से भेज सकते हैं. हम किससे पता लगा सकते हैं? एक IP एड्रेस से पता लगा सकते हैं किस सिस्टम से भेजा गया है, वही उसका IP एड्रेस होता है. by a set of unique numbers. IP address क्या होता है? एक सेट होता है आपके यूनिक नंबर्स का. That is called an internet protocol IP address. The IP address is composed of 4 different numbers. इसमें 4 different numbers होते हैं. Separated होता है PA से, जैसे आपका 205.134.120.6 ये क्या है? IP address है. Now let's talk about home page. Home page is the first page that is viewed when the browser starts. First page होता है जो कब view होता है जब browser आपका स्टार्ट होता है. इट इज ऑल्सो द पेज ऑफ अ वेबसाइट. किसका पेज होता है? वेबसाइट का, जो प्रोवाइड करता है इंट्रोडक्शन एंड द कंटेंट जो विद रिलेटेड लिंक्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेब पेज. अ वेब पेज इज अ सिंगल हाइपरटेक्स्ट फाइल और अ पेज दैट इज पार्ट ऑफ अ वेबसाइट. ये सिंगल हाइपरटेक्स्ट फाइल होती है, पेज होता है जो किसका पार्ट होता है? आपकी वेबसाइट का होता है. वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन होता है डेटा का. वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस ऑफ फाइल्स. The purpose of website can be almost anything. कोई भी पर्पस हो सकता है. न्यूज़ प्लेटफॉर्म हो सकता है, शॉपिंग वेबसाइट हो सकती है, इंफॉर्मेशन वेबसाइट हो सकती है, एडवर्टीजमेंट वेबसाइट हो सकती है, a news platform, an advertisement, an open library, a forum or sharing images, or an educational site. बिजनेस साइट भी हो सकती है. URL, the uniform resource locator, is an addressing scheme that is used on the internet to locate resources. ये इंटरनेट पे यूज होते हैं लोकेट करने के लिए रिसोर्सेज को एंड सर्विसेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. www डॉट इज अ ग्लोबल एड्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ग्लोबल एड्रेस होता है डॉक्यूमेंट्स का एंड अदर रिसोर्सेज का अपने वर्ल्ड वाइड वेब में. URL is mainly used to point to a web page. ये mainly किस लिए यूज होता है? पॉइंट करने के लिए वेब पेज को. A component of web page or a program on a website. The resource name consists of, इसमें क्या क्या होता है? डोमेन नेम होता है, identifying a server on the web service, a program name or a path to the file on the server. Now let's talk about cookie. Cookie is a message given to a web browser. एक मैसेज होता है जो दिया होता है वेब ब्राउजर को by web server. The browser stores the message in a text file. जो ब्राउजर होता है क्या करता है? स्टोर करता है मैसेज को किसमें? टेक्स्ट फाइल में. The message is sent back to the server. जो मैसेज होता है वापस से आपको किस पे भेज दिया जाता है? आपके सर्वर पे. सर्वर each time the browser requests a page from the server.
They are designed to hold the data specific to a particular client and website. The inventor of the modern World Wide Web, Tim Berners-Lee, was knighted by Queen Elizabeth. Now let's talk about web browser and browser toolbar. Web browser क्या होता है? A browser is a software application. है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो आपको अलाउ करता है व्यू करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए इंफॉर्मेशन को आपकी वेब पे मीन्स वेबसाइट्स पे. So it is used to locate, retrieve and display content. यूज होता है किसे लोकेट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए कंटेंट्स को वर्ल्ड वाइड वेब पे. इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? वेब पेजेस इंक्लूड होते हैं, इमेजेस, वीडियोस एंड अदर फाइल्स. यूजर कैन रिक्वेस्ट फॉर एनी वेब पेज. यूजर रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी वेब पेज के लिए बाय जस्ट एंटरिंग अ URL इनटू एड्रेस बार. A web browser is a client program. The client program होता है जो यूज होता है like the HTTP Hypertext Transfer Protocol to make request of web servers. आप request कर सकते हो web servers के लिए throughout the internet on behalf of browser user. The first web browser was called World Wide Web. First web browser क्या था? World Wide Web था. और किस कब क्रिएट हुआ था? आपका 1919 में क्रिएट हुआ था. Later the name was changed to Nexus. फिर नेम इसका किसमें आ गया था? Nexus क्यों नेम हो गया था इसका? वेब ब्राउजर कैन शो टेक्स्ट. आपको टेक्स्ट शो कर सकता है, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन एंड मोर इंफॉर्मेटिव थिंग्स. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वेब ब्राउजर टू इंटरप्रेट टेक्स्ट. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वेब ब्राउजर की इंटरप्रेट करने के लिए टेक्स्ट को एंड कमांड्स कंटेंट जो दी वेब पेज पे. सम ऑफ द लीडिंग इंटरनेट ब्राउजर्स आर. कुछ लीडिंग आपके इंटरनेट ब्राउजर्स हैं. Before that, Internet Explorer is still the world's most used desktop browser. Internet Explorer आजकल आज भी सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इंटरनेट ब्राउजर है, आपका डेस्कटॉप ब्राउजर है. ये कुछ एक्सप्लोरर्स है लाइक गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, यूसी ब्राउजर, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड ओब्रा मिनी. So these are their icons. Now browser toolbar. Browser का toolbar क्या होता है? It is a toolbar that resides within a browser window. जो किस में होता है? ब्राउजर के विंडो में होता है. They are considered to be a particular kind of extension that present a toolbar. Browser toolbar are specific to each browser. Specific होता है हर browser के लिए. ये आपका toolbar है. Address bar भी होता है इसमें. This is the address bar. This is a stop button. This is a refresh button. This is a search box. This is a web page window. This is a web page title, forward button, back button, and this is the address bar as I told you before. Now एड्रेस बार क्या होता है? द इनपुट बॉक्स डिस्प्लेज द एड्रेस ऑफ URL. ये इनपुट बॉक्स होता है एड्रेस का डिस्प्ले करता है. एड्रेस आपके URL का एड्रेस दिखाता है या URL आपके वेब पेज का जिसको आप देख रहे हो. यू कैन एंटर एनी वेब एड्रेस इन दिस बॉक्स. आप यहाँ पे कोई भी वेब एड्रेस को भी एंटर कर सकते हो नेविगेट करने के लिए न्यू पेजेस को. यू कैन ऑल्सो कॉपी या URL. आप URL भी कॉपी कर सकते हो वेब पेज एड्रेस जो होता है एंड पेस्ट कर सकते हो उस बॉक्स में. द एड्रेस बार इज नोन एज द लोकेशन बार. एड्रेस बार को क्या कहते हैं? लोकेशन बार कहते हैं. एंड इन गूगल क्रोम इट इज कॉल्ड द ओमनी बॉक्स. गूगल क्रोम में ओमनी बॉक्स कहते हैं. सर्च बॉक्स. द सर्च बॉक्स इज अ स्टैंडर्ड टू मोस्ट मॉडर्न वेब ब्राउजर. एक स्टैंडर्ड होता है मोस्ट मॉडर्न वेब ब्राउजर्स का. टू सर्च फॉर समथिंग जस्ट एंटर योर सर्च फ्रेज. आपको एंटर करना होता है सर्च फ्रेज उसमें बॉक्स पे ऑन द टॉप ऑफ लेफ्ट ऑफ योर ब्राउजर एंड प्रेस करना होता है एंटर की को. द ब्राउजर शुड ऑटोमेटिकली सेंड द क्वेरी. ब्राउजर क्या करता है? ऑटोमेटिकली सेंड करता है क्वेरी इसके डिजायर्ड सर्च इंजन पे एंड सेंड यू बैक द सर्च इंजन रिजल्ट पेज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैक बटन. इट हेल्प्स यू टू रिटर्न बैक टू द प्रीवियस पेज ऑफ द वेबसाइट. ये हेल्प करता है रिटर्न बैक करने में प्रीवियस पेज ऑफ द वेबसाइट पे. Now let's talk about forward button. It helps you to move to the next page. आपको हेल्प करता है मूव करने में नेक्स्ट पेज पे. It only works if you have previously used back button. ये जब भी वर्क करता है जब आपके पास previously used back button है कि आपने कुछ ऑलरेडी यूज करा है. Now refresh and reload button. Refresh reload buttons helps to reload or update what is being displayed. अपडेट कर देता है, reload कर देता है कि अब क्या डिस्प्ले आपके सामने जो है उसको फिर से आप देख सकते हो रिफ्रेश करके. It downloads the page from the server again. ये आपके पेज को सर्वर से फिर से डाउनलोड करता है. 1.7 बिलियन ऑफ द इंटरनेट यूजर्स आर इन एशिया. 1.7 बिलियन जो है इंटरनेट के यूजर्स हमारे एशिया में है. दिस बटन हेल्प्स टू स्टॉप द लोडिंग ऑफ करंट पेज. ये बटन स्टॉप कर देता है लोडिंग किसके? आपके करंट पेज की. होम बटन इट टेक्स यू टू द होम पेज. ये होम पेज पे ले जाता है स्पेसिफाइड इन द ब्राउजर प्रेफरेंस. वेब पेज टाइटल. अ पेज टाइटल इज अ मेन टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब्स अ वेब पेज. ये मेन टेक्स्ट होता है जो डिस्क्राइब करता है आपके वेब पेज को. इंटरनेट सिक्योरिटी.
इंटरनेट कैन बिकम एन इनसिक्योर चैनल फॉर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। सिक्योर चैनल मिल जाता है एक्सचेंज करने के इन्फॉर्मेशन को, लीडिंग टू हायर रिस्क ऑफ इंट्रूशन और फ्रॉड। इंटरनेट सिक्योरिटी इज अ प्रोसेस ऑफ टू क्रिएट, प्रोसेस होता है क्रिएट करने के लिए रूल्स को एंड एक्शंस को जो प्रोटेक्ट होता है अगेंस्ट अटैक्स ओवर द इंटरनेट। इट रिलाइज ऑन स्पेसिफिक रिसोर्सेज, रिलाई करते हैं स्पेसिफिक रिसोर्सेज पे स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग डेटा that is sent through the internet. It focuses on preventing cyber attacks. We focus करता है प्रिवेंट करने के लिए साइबर अटैक्स को happening through the internet, जो आपके पूरे इंटरनेट पे होता है, इसको कॉन्सेंट्रेट करके on browser and network security. Internet security practice involves the use of encryption. इसमें क्या होता है, यूज होता है encryption से वायरस प्रोटेक्शन एंड malware detection as well as the installation of firewalls and other prevention measures. And examples of internet security is an online system. जो example internet security का क्या online system है that prevents credit care number from being stolen on a shopping website. MyDoom is considered to be the most expensive virus in the world. ये most expensive virus है MyDoom पूरे world में. Some website could be spreading virus. कुछ website spread करती है virus, contains content, exploitable content होता है, even be trying to steal your personal data. वो आपके personal data को बस steal करने की कोशिश करते हैं. Securing your website with protect your website. Secure करोगे अगर आप अपनी website को, तो आपकी website protect रहेगी. बहुत सारे several vulnerability से to block a website from downloading in your browser. Follow the steps given below. The very first step you have to follow, you have to click on internet option from the tool menu of the web browser. The following dialog box appear as shown. Then आपको click करना है security tab पे on it and click करना है आपको restricted sites पे. Step 3, site button gets enabled and a window will open as shown. site button जो था enable हो जाता है, window open हो जाएगी. Then step 4, click करना है आपको site button पे restrict करने के लिए sites को, so that they can be loaded. जिससे वो load हो जाए तो dialog box window आपके सामने appear हो जाएगी. Step 5, type the name of the website. website का name type करना होता है, add the website to the zones में. Step 6 क्या, आपको add button पे click करना है, इस पे the website moves to the restricted website zone. restricted website zone में move हो जाएगी. पिक्चर्स को कैसे ब्लॉक करते हैं डाउनलोड होने से? फॉलो द गिवन स्टेप्स. स्टेप 1 क्या, आपको क्लिक करना है एडवांस टैब पे अपने इंटरनेट प्रॉपर्टीज के, देन आपको अनचेक करना है उसमें से शो पिक्चर्स को अनचेक कर दो. सो फिर आपको क्लिक करना है अप्लाई पे, देन आपको क्लिक करना है ओके पे. 68% ऑफ फंड्स lost as a result of a cyber attack were declared unrecoverable. 68% जो funds है वो unrecoverable है because किसकी वजह से? cyber attacks की वजह से जो हुए हैं. Now the picture will not be downloaded in the web browser. The downloading will be faster rather. Now passwords and securing your account. कैसे secure करते हैं आपके account को? Passwords helps in protecting access to your computer. Protect करने में help करता है आपके access का computer को. A strong password is your first line of defense against intruders and imposters. To keep your account safe, a few tips are given. अगर आपको अपने account को safe रखना है, कुछ tips आपके लिए given है. Use a different password. आपको एक different password use करना चाहिए for each of your important account. हर important account के लिए हर एक different password होना चाहिए. email के लिए, social sites के लिए, अगर banking account के लिए, सब पर different होना चाहिए. If someone figures out your password for one account, अगर किसी को आपको एक अकाउंट को पासवर्ड पता चलेगा, दूसरे का तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वो different होता है. It is possible that they could we get access to your personal information or other online services like banking. So reusing password is risky. Update your recovery email address regularly. आपको recovery address को regularly update करते रहना चाहिए so that you can receive any emails in case you need to reset your password. You can also add a recovery phone number. आप recovery phone number भी add कर सकते हो password receive करने के लिए, reset codes के लिए, text messages के through और phone calls के through. Do not leave notes with your password. आपका notes नहीं छोड़ने चाहिए अपने password के साथ to various sites on your computer or desktop because people can easily steal your notes. easily पढ़ लेंगे और easily guess कर सकते हैं them and use them to hack your account. If you choose to save password in a file on your computer, create a name for the file that won't give you it away. So using numbers, symbols or a mix of upper and lower case letters in your password makes it harder. Yes, of course, अगर आप lower case, upper case को use करते हो, numbers को symbols को use करते हो, harder हो जाता है guess करने के लिए. A strong password should have, एक strong password में क्या होना चाहिए? At least 12 characters होने चाहिए. You should choose a password that is minimum of 12 to 14. आपको वो password choose करना चाहिए minimum होता है 12 से 14 characters का length में.
You need to choose a password that is long enough. आपको वो password choose करना होता है जो काफ़ी बड़ा हो. A longer password would be even better. जो बड़ा सा password हो वो better होता है. Includes numbers, symbol, capital letters and lowercase letters. Use a mix of different types of characters to make the password harder. आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स को यूज करना चाहिए अपने पासवर्ड को हार्डर करने के लिए. यूज सम अपर केस, कुछ अपर केस स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल्स यूज करने चाहिए लाइक दिस डॉलर एंड परसेंट एट द रेट. इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर समवन टू गेस, जिससे कोई डिफिकल्ट हो जाए किसी को गेस करने के लिए आपके पासवर्ड को. पासवर्ड में क्या होना चाहिए, वन लोअर केस कैरेक्टर्स होना चाहिए, एटलीस्ट वन कैपिटल लेटर होना चाहिए, वन नंबर होना, एटलीस्ट वन नंबर. Not contain multiple identical consecutive characters. Not to be same as the account name. Account name की तरह सेम नहीं होना चाहिए. और एटलीस्ट 12 कैरेक्टर्स होने चाहिए. नॉट टू बी अ कॉमन पासवर्ड नहीं होना चाहिए. नॉट बी यूज इन पास्ट ईयर्स, और आपने पहले उसे यूज नहीं किया वो होना चाहिए. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a good day.